So in this chapter we will be studying about the lightning effect, about the earthquake. Like there was one chapter windstorms and cyclones in your class 7, ठीक है? तो उसमें हमने लाइटनिंग के केस में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, राइट? थंडरस्टॉर्म वाला किया था ना कि थंडरस्टॉर्म जब आ जाता है तो क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या होता है थंडरस्टॉर्म. ओके, तो इन द सेम वे विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द लाइटनिंग, कैसे होते हैं ये इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, ठीक है? अर्थक्वेक कैसे कॉज होता है, उस केस में हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है. सो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन दिस चैप्टर अंडर सम नेचुरल फिनोमेना. Okay, because they are natural, right? So coming to the first part, lightning. Lightning means an electric spark. ठीक है ना? इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है, ठीक है? तो दैट इज व्हाट, दैट इज लाइटनिंग. स्पार्क्स हो रहा है, ठीक है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्जेस दे आर बेसिकली फ्लोइंग इन द क्लाउड्स, ठीक है? that are creating the electric spark, ठीक है? तो electric charges, electric current, they flow, ठीक है? okay, electric current it flows and it causes an electric spark. अब आपको पता है कि electric charges जो होते हैं, like I told you in the last chapter also that we are having two types of electric charges, ठीक है? कौन कौन से थे? positive charge the negative charge, ठीक है? Where the positive charges, positive and positive, it is going to repel each other, and in the similar way negative and negative, it is going to repel each other. Like charges, they will repel each other, and unlike charges, positive and negative, they are going to attract each other. ठीक है जी? क्लियर? ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में. क्लियर? अब उसके बाद है that when the electric sparks or when the lightning phenomena, ये charges का phenomena किसने discover किया था? So it was discovered by Benjamin Franklin. It was discovered by Benjamin Franklin in 1752. Still students are joining. 1752 में Benjamin Franklin ने he studied about the concept of lightning. He is an American scientist. Okay, right? So he discovered about the charges, the positive and the negative charges, right? So how these sparks they are basically produced. Last chapter में भी हमने पढ़ा था कि whenever there is rubbing of two or more things, तो एक electric spark निकलते हैं. You feel like कि एक current सा निकला है ना? तो वो कैसे होते हैं? It is by the rubbing of the things, ठीक है? By charging of the things. तो charge by rubbing भी आता है. Okay? Clear? अब next करते हैं चार्जिंग बाय रबिंग. तो ये चार्जेस जो हैं, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली, ठीक है? Whenever we rub two things, they acquire charge. Okay? They acquire charge. जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक एग्जांपल बताई थी. हाँ जी, कौन बताएगा क्या एग्जांपल थी? Where we discussed about the charges by rubbing. जी रदम. Rubbing of hands, और when we take comb and continuously क्या? comb our hair, it comb gets have electric Okay. charges. ओके ओके. कृतिका, हाँ जी बोलिए बेटा. Kritika, what was the example in which we discussed about the charging by rubbing?
Ma'am, we had to rub the scale on our hair and dry hair, and then bits of paper, they will attract, the scale will attract the bits of paper. Okay, so yes, we discussed the example of the comb also. ठीक है कि जब हम comb को अपने dry hairs में से क्या करते हैं, when we rub it 2 or 3 times in our dry hair, okay, and when we bring this charged comb, right, near to the bits of the paper bits के पास जब लाते हैं तो then it attracts them. ठीक है, so this is the example of the charging by rubbing method. ठीक है, तो in the same way जब हम 2 balloons ले लेते हैं, right, suppose we take 2 balloons, okay, right, और जब हम इनको rub करते हैं with our hairs also, right, हम इनको rub कर लेते हैं with our hairs, right, in the dry hairs. तो आपने 2 balloons लेने हैं और इनको rub करना है अपने dry hairs के साथ. ठीक है, तो what you will observe when you bring them close, जब आप उनको साथ में लाओगे तो what you will observe, क्या होगा उन balloons को, will they attract each other or will they repel each other? They will repel because both are acquiring the same charge. ठीक है, so there will be the repulsion in these balloons. ठीक है, तो ये दोनों बैलून्स जो हैं जिनको आपने ड्राई हेयर्स में रब किया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो जब हम इसको पास लाएंगे, राइट, एक सिचुएशन है जिसमें मैं इनको दोनों को पास ला रही हूँ. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ऐसे करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. Okay, so this shows that they had acquired the same charge due to which they are repelling each other. Okay, right, there is one more activity in your NCERT book regarding this charging by rubbing method. अब आपने एक refill लेना है पेन का. ठीक है, तो आपने एक पेन का refill लेना है, right, so suppose हमने एक refill ले लिया है पेन का, right, rub it with polythene. ठीक है, हमने इसको पॉलिथीन के साथ रब करना है. नाउ इट विल एक्वायर चार्ज. ठीक है, इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. अब हमने क्या करना है इसको, नाउ यू हैव टू ब्रिंग अगेन वन रिफिल. ठीक है, और फिर उसको भी पॉलिथीन बैग के साथ ही रब करना है. नाउ अगेन द सेकेंड रिफिल इट विल आल्सो एक्वायर द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस की एग्जांपल थी. अब हम इसमें नेगेटिव चार्जेस की एग्जांपल कर रहे हैं. ठीक है, अब ये नेगेटिव दे विल आल्सो रिपेल ईच अदर. ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव थे, सो दैट्स व्हाई दे वर रिपेलिंग ईच अदर. यहाँ पर अब ये दोनों नेगेटिव हैं एंड दे आर रिपेलिंग ईच अदर. ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ आई एम ब्रिंगिंग अ negatively charged a refill which has acquired a negative charge very close to the balloon that has acquired a positive charge. ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, एक बैलून जिसने ऑलरेडी जो चार्ज है हमारा विद द पॉजिटिव चार्ज, जिसको मैंने ड्राई हेयर्स के साथ किया हुआ था, उसको अब मैं आई विल ब्रिंग अ वेरी क्लोज टू द पेन रिफिल दैट इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज. सो व्हाट दे विल बी डूइंग नाउ, अब क्या होगा इन दोनों के साथ, yes, so what will happen, so they will attract each other because the positive charge it will attract the negative charge. ठीक है, so here these both they will attract each other. Okay, so this is the example of the activity in which we are saying that the body they acquire charge by rubbing, right, and we will see that whether they are acquiring positive charge or negative charge by their attraction or repulsion property. Okay, by attraction or their repulsion property. तो ऐसे ही सेम एक्टिविटीज है, अब आपने ग्लास रॉड के साथ करनी है. ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, दिस इज क्लियर.
अब कुछ और चीजों की बात करते हैं जिसमें हम उनको रब कर रहे हैं. Where is my duster? See जब जी they were repelling, that means they were having the same charges. ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, इसका मतलब क्या था कि उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो सेम है. ओके, so now we are going to do the same activity with a glass rod. एक हमने ग्लास की रॉड लेनी है. ठीक है, now we will be rubbing it with the silk cloth. ठीक है, सिल्क के क्लॉथ के साथ हम उसको रब करेंगे. सो लेट्स टेक द ग्लास रॉड. एक अपरेटस ले लेते हैं पहले, जिसमें हमने ग्लास रॉड को एक स्टैंड के ऊपर हमने फिक्स करना है. ठीक है, so this is your cardboard and here we are taking a stand. ठीक है, अब इसके साथ मैं एक थ्रेड के साथ यहाँ पर एक ग्लास रॉड को हम टाई कर देते हैं. ओके, तो ये हमारी ग्लास रॉड आ गई. राइट, अब हमने क्या करना है, सेम एक्टिविटीज वी विल बी रिपीटिंग. हमने ये ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करना है. ठीक है, एंड वी विल बी, प्रगति बेटा ये स्टार्टिंग से ही है बेटा, कुछ नहीं किया है मैंने, उसका ऑपरेटर्स बता रही हूँ आपको कि हमने एक स्टैंड के साथ एक ग्लास रॉड को फिक्स कर दिया. ठीक है, एंड व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली वी आर रबिंग दिस ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ. ठीक है जी, सो आफ्टर रबिंग दिस ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, राइट, हमने एक दूसरी ग्लास रॉड जो है वो इसके पास लानी है. नाउ वी विल बी ब्रिंगिंग अनदर ग्लास रॉड rubbed with silk cloth near to it. ठीक है, यानी कि दोनों को हमने सेम जो है वो रब करना है with the silk cloth. So what you will see, यहाँ पर you will see that both they will move away from each other. That means they had acquired the same charges. ठीक है, अब उन्होंने सेम चार्ज एक्वायर कर लिए, इसीलिए ये दोनों जो है वो एक दूसरे से क्या जा रही हैं, दूर दूर जा रही. राइट, so the glass rod rubbed with silk has acquired the positive charge. Positive being the same charges or being the like charges, they repel each other. ठीक है, क्लियर. तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं आपकी बुक में that are showing the charging by rubbing method. हाँ जी, एनी डाउट टू एनीवन? हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? मनस्वी, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया. जैसे हमने लास्ट 2 एक्टिविटीज डिस्कस की ना कि पेपर सॉरी पेन का रिफिल ले लेते हैं हम, पेन के रिफिल को हमने चार्ज कर लिया सबसे पहले पॉलिथीन बैग के साथ. ठीक है, तो दूसरा भी पेन का रिफिल ले लिया, उसको भी पॉलिथीन बैग के साथ चार्ज कर लिया. अब दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ गए तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगे. तो सेम इज विद दिस एक्टिविटी कि इसमें भी हमने 2 ग्लास रॉड्स ली हैं, दोनों को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया. ठीक है, दोनों को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, दोनों ने सेम चार्ज एक्वायर कर लिया एंड दे आर बेसिकली रिपेलिंग ईच अदर. ठीक है जी, कृतिका बोलिए बेटा. मैम हमें ये कैसे पता लगता है कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है? हाँ जी मैम ये कैसे पता लगेगा जैसे वो नेगेटिवली चार्ज है या फिर बेटा, ये पॉजिटिवली हम रब चार्ज है? करके देख रहे हैं ना. अब जैसे मैं सेकंड एक्टिविटी लूंगी, अब सेकंड एक्टिविटी में मैं एबोनाइट रॉड ले रही हूँ. ठीक है, अब जब मैंने एबोनाइट रॉड को रब करके इसके पास लाई तो ये दोनों अट्रैक्ट करने लग गए. इसका मतलब इसमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. ठीक है ना, तो ये हम कर करके एक्टिविटीज देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है. ठीक है, अब जैसे सेकंड एक्टिविटी में मैं एबोनाइट रॉड ले रही हूँ,
In the second activity, I am taking one silk rod and one the ebonite rod. एबोनाइट रॉड को मैंने फर या वूल के क्लोथ के साथ रब कर लेना है, ठीक है। अब इमेजिन ये मैंने ग्लास रॉड यहाँ पे हैंग करवाई हुई है और उसके पास में लाई एबोनाइट रॉड, ठीक है। This is the glass rod and this is the ebonite rod now that is rubbed with fur or wool, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, now they will be attracting each other. अब यहाँ पर अट्रैक्शन शो होगी, इसका मतलब क्या है कि ग्लास रॉड इट वाज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड एबोनाइट इट हैज एक्वायर्ड अ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करने लगे हैं, अट्रैक्ट करने लगे, ठीक है। Yes, ma'am. सेम वाज विद द पेन एंड रिफिल, जो रिफिल था और जो बैलून था, ठीक है। पहले वो दोनों सेम जो थे एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, बट जब हमने ऑपोजिटली लाए, एक रिफिल ले लिया और एक बैलून ले लिया, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। दैट मींस उसमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। So these are some of your activities that are actually showing the charging by rubbing method. Beta, based on the rubbing material, they will acquire charge. अगर मैं उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रही थी तो उस पॉजिटिवली चार्ज हुई, अगर मैं उसको फर या वूल के साथ कर दूंगी तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रॉड्स के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, ये रबिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा चार्ज एक्वायर करे। ओके, क्लियर। हाँ जी, एनी अदर डाउट, किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। ठीक है, जैसे हमने बैलून की एक्टिविटी की थी, बैलून रब्ड विद वॉल, ठीक है। तो जो क्वेश्चन भी था आपका कि बैलून था, जब हमने उसको रब किया, चार्ज किया और वो वॉल के साथ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। सो दिस कैन बी द एग्जांपल आल्सो विद द चार्जिंग बाय रबिंग मेथड। क्लियर। तो ये नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर देयर। जब आप जो है वूलन क्लोथ पहनते हो या वूलन क्लोथ उतारते हो तो वो आपकी बॉडी के साथ रब हो जाते हैं एंड दिस प्रोड्यूसेस चार्ज। So this can also be the example that can be counted here. ठीक है, तो आप ये भी एग्जाम्पल काउंट कर सकते हो इसमें। Clear? Number of examples are there which are showing that charging by rubbing is there. So in the same way, the sparks, it was basically firstly known to the Greeks in 600 BC. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स का फिनोमिना था, it was discovered by Greeks राइट, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक रेजिन लिया था, एम्बर। ठीक है, ये एक रेजिन होता है सॉलिड, राइट। इट वाज रब्ड विद फर, और इसको फर के साथ उन्होंने रब किया एंड देन दे सी दैट इट अट्रैक्ट लाइट थिंग्स लाइक हेयर। तो यहाँ से अट्रैक्शन बाय रबिंग का फिनोमिना जो था वो एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, अट्रैक्शन बाय रबिंग का फिनोमिना यहाँ से एक्सप्लेन हुआ। It was first done by the Greeks with the amber, a resin that was rubbed with fur. Clear? तो जो हमारे क्लोथ में से जो स्पार्क्स निकलते हैं, ठीक है, तो ऐसे जब हम चीजों को रब करते हैं, this is all due to the production of the electric charges which are produced by the rubbing method. ठीक है, तो जब हम चीजों को रब करते हैं तो वो क्या एक्वायर कर लेते हैं, दे एक्वायर चार्ज। ओके, हाँ जी, हो गया क्लियर बेटा? क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं नाउ। So we have done the one method of charging, ठीक है, by rubbing or by friction.
तो ये हमने एक ही करना है इसमें। Coming to the next is transfer of charges. कि हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्जेस हैं, we can transfer them. We can transfer the charge from one body to the another body. This is called transfer of charges. ठीक है? And we will be using a device which we called as gold leaf electroscope. We will be using a device, gold leaf electroscope, for the transfer of charges. Clear? हाँ जी, ठीक है बेटा। अब इसमें हमने करना क्या है देखिए। तो सबसे पहले मैं बना देती हूँ। A gold leaf electroscope is used for detecting. It is used for detecting electrical charges. ठीक है, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस डिटेक्ट करते हैं एंड द नेचर, राइट, और उसकी क्या नेचर है एंड इट्स नेचर ऑन द बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, हम ये भी देखते हैं। ठीक है, एक तो ये देखते हैं कि क्या बॉडी चार्ज है कि नहीं। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि विच टाइप ऑफ चार्ज इज देयर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यूजिंग द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट William Gilbert. He invented the gold leaf electroscope, which is a very sensitive and delicate instrument. ठीक है जी। सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करके हम ये बताते हैं कि सबसे पहले कि बॉडी इज आइदर चार्ज्ड और नॉट। ठीक है, और अगर चार्ज है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और सेकेंडली हम इसके ऊपर क्या बताते हैं, राइट, कि फर्स्टली इसको किसने डिस्कवर किया था, विलियम गिलबर्ट ने।